Hey guys, what's up? I hope you're doing pretty dope. तो आज की वीडियो में talk about how to earn lakhs as a fitness influencer. One of the goal of my channel is to explain every business model I have knowledge about so that जो लोगों को interest है वो उससे कुछ सीख सके. Without any further delay, let's get into it. So it's gonna be a zero to zenith guide on how to earn lakhs as a fitness influencer. Let's get it started. Okay guys, table of contents. The first is gonna be reality checks and niche descriptions, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन fitness industries की actual reality क्या होती है, plus the niche description कि ये niche होती क्या actually. In the second one, I'm gonna explain how do you get paid here. तुम्हें यहाँ पे पैसे precisely कैसे मिलते हैं, that thing. The third one is gonna be pure numbers game. इसके बारे में तुम्हें एंड में एक्सप्लेन करूंगा. So let's get started. So let's start with the reality checks here. The first reality check. Do you yourself have a physique? See, तुम एक चीज हमेशा नोटिस करना कि लोग हमेशा ज्ञान उसी इंसान से लेना पसंद करते हैं जिसने उस चीज के अंदर कुछ एक्सपीरियंस पहले से ही ले रखा हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हें कोई क्लाइंट चाहिए, ठीक है. टू गेट द क्लाइंट यू फर्स्ट हैव टू कन्विंस हिम कि सी आई हैव अ फिजिक. अगर तू मेरे अंदर आता है, अगर तू मेरी टीम ज्वाइन करता है, मेरा कोर्स खरीदता है, मेरा कोचिंग लेता है, तो आई मेक योर बॉडी टू. ठीक है. अब उस क्लाइंट के अंदर वो भावना जब भी आएगी जब तुम्हारे पास खुद के पास बॉडी होगी. ठीक है. अगर तुमने नोटिस करा होगा कि कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है, वो ना बॉडी के बारे में बहुत बोलते हैं, बहुत सारे, ठीक है, इंडियन फिटनेस कम्युनिटी में. बट यू रियलाइज वन थिंग कि मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव अ वेरी गुड अपीलिंग फिजिक. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, एंड इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन. मैं यहाँ पे किसी को मॉरली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं जस्ट रियलिटी एड्रेस कर रहा हूँ. ठीक है. तो एक क्लाइंट का तुम्हारे पास सिक्योर होना डिपेंड्स ऑन हाउ जैक्ड यू आर. ठीक है, तुम्हारी फिजिक कितनी है, तुम कितने खुद जैक्ड हो, क्योंकि बंदों को ना जो दिखता है उस पर ज्यादा विश्वास होता है एज कम्पेयर टू जो सुनता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू वन मोर थिंग. लेट्स से अगर तुम्हें कोई सर्जरी करवानी है, लेट्स से यू आर गोइंग फॉर अ हार्ट सर्जरी, वुड यू लाइक टू गो विद अ डॉक्टर जिसके पास एक्सपीरियंस है और विद समवन जिसने कभी एक सर्जरी करी नहीं? ऑब्वियसली डॉक्टर. इट्स सेम विद पायलट्स. ठीक है. लेट्स से यू बुक अ प्राइवेट जेट. ठीक है. Would you want a guy who's just starting with driving jets, or you want a guy who's experienced in it? Okay, people like experience because when someone's experienced, they show a dignity of trust. ठीक है. That's like the worldwide truth. अब मैं I can talk about money because I've earned it. ठीक है. That's like you guys trust me because I've experienced, you have seen it, and it reflects on my fucking voice. ठीक है. That's the thing. So the first thing you should ask yourself is, do I myself have a good physique? ठीक है. Down the line तुम बना सकते हो, obviously. I'm not saying तुम बना नहीं सकते. Obviously you can build one. But this factor is very important when it comes to securing clients because तुम्हारी फिजिक अच्छी होगी तो लोग तुम पे blindly trust करेंगे and it's so easy to sell them. ठीक है. That's the first thing. Now think about it. If Saket Gokhale, I think he's one of the best, I would say, genuine fitness creator in this fitness niche. And just imagine if he started his own coaching programs of bodybuilding, of muscle building. Dude will get rich. I think he'll approximately earn around 30 lakhs in a day if he launched his course easily. Easily, because why? First of all, he has his own physique. ठीक है. Secondly, he has a good, decent persona in the industry. ठीक है. The first reality check is you yourself should have some physique in order to talk about fitness. Okay, that's the first thing. The second thing, okay, that's gonna be the third one, but never mind. Think from a client's perspective. Okay, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्लाइंट क्या चाहता है. ठीक है. तुम्हें यूं नहीं सोचना कि मेरे को क्या चाहिए. क्लाइंट क्या चाहता है? क्लाइंट चाहता है उसकी बॉडी बन जाए. ठीक है. अब उसकी बॉडी कैसे बनेगी? तुम्हें उस पर एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. बैक टू द फर्स्ट पॉइंट. ट्रस्ट कैसे एस्टैब्लिश होएगा? जब वो तुम्हें बातें करते हुए सुनेगा, तुम्हें कुछ समझाते हुए सुनेगा, तुम्हारी फिजिक देखेगा, उससे नेचुरली ट्रस्ट जनरेट होता है कम्युनिकेशन से. तो तुम्हें अपने क्लाइंट को समझना पड़ेगा कि तुम्हारा क्लाइंट क्या चाहता है किसी भी बिजनेस मॉडल में. ठीक है. अगर वो चाहता है कि उसकी बॉडी बने तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि वो उससे एडवाइस ले, इसकी पहले से ही बॉडी है. ठीक है. इट्स लाइक कॉमन सेंस. ठीक है. तो थिंक फ्रॉम अ क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव. किसी भी बिजनेस में तुम घुसो, हमेशा सोचो कि जो चीज कोई तुमसे खरीद रहा है वो क्या चाहता है एज कंपेयर टू तुम्हें पैसे चाहिए. ठीक है. तुम्हें पैसे चाहिए इज अ सेकेंडरी थिंग. क्लाइंट क्या चाहता है इज द प्राइमरी फैक्टर. ओके, कीप दिस इन माइंड ऑलवेज. Now the second thing, most of your competition is on roids. Okay, that's the thing I want to address because तुम्हें अगर लगता है कि फिटनेस इंडस्ट्री में सब लोग नेचुरल हैं, you're lying to yourself. And the thing is, they are lying to all the people at the same time. So most of your competitors are on steroids. That's the harsh reality. ठीक है. And I want to address it. ठीक है. Because अगर तुम्हें लगता है कि fitness influencing and all of this is like all sweet and cute, नहीं. There is a lot of dark stuff here. Okay. People are on roids and they claim natural. ठीक है. So those are your competition. For example, that Rohit guy. Have you seen that? I don't know if you guys know about that. If you think he's natural, bro. I mean, I think you have to have some, इतनी मेंटल सेंस तो सब में होनी चाहिए कि वो देखती पहचान जाए कौन नेचुरल है कौन नहीं. ठीक है. एंड या आज के टाइम पे इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू स्पॉट हुज नैटी एंड हुज नॉट. ठीक है. जो नैटी
बंदा होता है ना, उसके लाइक इंसर्शंस बहुत क्लीन और प्यारे दिखते हैं, मेहनत दिखती है उस बंदे की। जो नेचुरल नहीं होता वो थोड़ा सा लाइक दिख जाता है, इट्स इजीली विजिबल। सो अपार्ट फ्रॉम दैट माई पॉइंट इज कि मोस्ट ऑफ योर कॉम्पिटिशन इज ऑन रॉइड्स एंड दे आर मार्केटिंग देयर स्टफ एज वेल। सो ये 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना किसी फिटनेस नीश में घुसने से पहले। तो इन 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। ये चीज तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए मैंने नहीं बताई है, ये चीज मैंने तुम्हें बताई है टू गिव अ रियलिटी चेक सो दैट यू कैन मेक मूव ऑन द बोर्ड नाउ, ठीक है। अगर तुम्हें फिटनेस में घुसना ही है तो, एंड यू हैव टू टेक योर फिटनेस वेरी सीरियसली, बिकॉज अगर तुम लिटरली इस चीज से ही पैसे कमा रहे हो, दैट्स योर फकिंग धंधा, ओके। सो यू हैव टू टेक इट सीरियसली, ओके। मैंने अर्पित बाला वाली वीडियो में बताया था कि इट isn't that serious। मैंने ये बात उन लोगों के लिए कही थी जिनका मेन चीज ये नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग हार्ड इज गुड फॉर योर बॉडी, दैट्स एब्सोल्युटली समथिंग आई सपोर्ट, बट डोंट बी ऑल अबाउट इट। दैट्स व्हाट आई मेंट इट इन अर्पित बाला's video। But if your goal is to literally become someone who wants to influence people when it comes to fitness, you should take your training very seriously, okay, very very seriously, and I mean it from all of my energy। Let's move forward। I hope तुम्हें reality check समझ आ गया है। Let me sum it up for you। सबसे पहले कि तुम्हारी खुद की फिजिक को तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले खुद फिजिक बनानी पड़ेगी। अगर तुम खुद नहीं बनाओगे तो लोग तुम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं बट द चांसेस आर गोना बी वेरी लो, एंड हैविंग नॉलेज एंड बॉडी बोथ इज समथिंग आई वुड से बेनिफिशियल। द सेकंड वन, तुम्हारा बहुत सारा कंपटीशन इस मार्केट में रॉइड्स पे है, दे आर ऑल टेकिंग स्टेरॉइड्स, ठीक है, विच नेचुरली इंक्रीजेस द बार ऑफ कंपटीशन, ठीक है। द थर्ड थिंग, हमेशा क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचो, वो क्या चाहता है, वो तुम्हारी कोचिंग क्यों लेगा, क्योंकि उसे बॉडी चाहिए। क्या तुम्हारे पास बॉडी है? बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इन 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखो। सो दैट्स इट अबाउट द रियलिटी चेक्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट सैचुरेशन पॉइंट एंड नीश डिस्क्रिप्शन। देखो, नीश, ये वाली नीश जो है फिटनेस नीश, इट्स वेरी सैचुरेटेड। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? फॉर एग्जांपल, तुम एक चीज हमेशा देखोगे कि फिटनेस की जो नीश है ना, वो बहुत टाइम से ही सैचुरेटेड है। इतने सारे फैट बर्नर्स, मास गेनर्स, सप्लीमेंट स्टोर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स भरे हुए हैं चारों तरफ, इन वेस्टर्न कंट्रीज, इन इंडियन कंट्रीज, चारों तरफ भरे हुए हैं, व्हिच मीन्स इट्स अ सैचुरेटेड नीश। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड नीश? व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल selling things for the same audience, it's called a saturated threshold point। For example, let's say यहाँ पे 1000 बंदे हैं, ठीक है, और 10,000 लोग उन सेम 1000 बंदों को एक सेम चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ये चीज कह सकता हूँ कि वो चीज जो वो लोग बेच रहे हैं वो सैचुरेटेड चीज है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो तुम्हें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि तुम्हें एक्सेप्शनली ग्रेट होना पड़ेगा। इफ यू कांट बी एक्सेप्शनली ग्रेट, यू हैव टू बी एक्सेप्शनली यूनिक, ठीक है। दीज आर द ओनली 2 ऑप्शंस यू हैव इन दिस नीश, ठीक है। तो या इट्स सैचुरेटेड, दैट्स वेरी ट्रू। बहुत सारे लोग एक ही ऑडियंस के लिए compete कर रहे हैं, एंड यू हैव टू एब्सोल्युटली कीप दिस इन माइंड कि फिटनेस इज अ सैचुरेटेड नीश, ठीक है, एंड इट्स गोना बी डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज इफ यू हैव पोटेंशियल, इफ यू कैन पुट थिंग्स लाइक द वे आई एक्सप्लेन, इफ यू कैन ब्रिंग सम यूनिकनेस टू इट, इफ यू कैन ब्रिंग सम सेंस टू इट, आई genuinely बिलीव यू कैन पैन दिस आउट। एंड वन थिंग, अगर तुम्हें नेचुरल इंक्लिनेशन आता है फिटनेस को लेके, आई डोंट केयर कितनी भी हार्ड हो, जस्ट गेट इनटू इट। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, मेरे को अपनी डाइट सीरियसली रखनी है, मेरे को अपनी बॉडी फिजिक पीक पे लेके जानी है, घुस जाओ। जो तुम्हारी आत्मा कहती है वो करो, जहां तुम्हारा मेहनत करने का मन करे वहां करो, ठीक है। उस चीज से भागो मत, कितनी ही मुश्किल हो। अगर मेरा दिल करता कि मेरे को बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, तो मैं अपनी पूरी जान लगा देता उस चीज में। दैट्स द थिंग, जो तुम्हारी आत्मा कहती है उस चीज को करो, कभी भी उस चीज से भागो मत, क्योंकि फिर उसी चीज से एंड में जाकर रिग्रेट होता है। सो डोंट डू दिस, ओके। Now let's move on to the other slides। How do you get paid here? That's the biggest thing, कि तुम्हें पैसे मिलेंगे कैसे? See, there are basically 5 ways। सबसे पहला तो कोचिंग, कि तुम लोगों को कोच करोगे कि भाई आ मेरे पास बैठ, मैं तेरी बॉडी बनवाऊंगा। यहाँ पे तुम बेसिकली होप सेल करते हो। I'll make sure you get jacked। You are selling hope here। यहाँ पे तुम लोगों को होप देते हो कि भाई ओके देख, मेरी फिजिक है, मेरे प्रिंसिपल्स को तो फॉलो करेगा, मेरी बातों को तो सुनेगा, मेरे डाइट प्लान को फॉलो करेगा, तो तेरी भी फिजिक बन जाएगी। वी आर सेलिंग होप हेयर, ओके। सो दैट्स द फर्स्ट वे ऑफ अर्निंग, ठीक है। और तुम कहीं ना कहीं, आई थिंक एनीथिंग अराउंड 2499, ओके, 2499 से कहीं ना कहीं अराउंड 4K तक चार्ज कर सकते हो ऑन अ मंथली बेसिस, ठीक है। तुम्हें लाइफ टाइम एक 4K की फीस रखनी है, देन इट ऑल्सो मेक सेंस, बिकॉज द चांसेस ऑफ पीपल पेइंग यू मंथली इन द वेरी बिगिनिंग इज वेरी हार्ड। इट कैन बी समथिंग बिटवीन दिस 2499 और 4K कोचिंग फीस ऑफ पर पर्सन, ओके। दैट्स द थिंग। द सेकंड थिंग्स आर ब्रांड प्रमोशंस। तुम्हारे पास ब्रांड आएंगे, ठीक है। अब ब्रांड्स का क्या सीन होता है ना, द ब्रांड्स विल ओनली अप्रोच यू बेस्ड ऑन हाउ योर व्यूज आर, ठीक है। अगर तुम्हें ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ब्रांड्स डू नॉट केयर तुम क्या पोस्ट कर रहे हो, दे विल जस्ट टेल यू टू जस्ट मार्केट देयर प्रोडक्ट, बिकॉज उनको आईज चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि अगर तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है और उसे कोई देख ही नहीं रहा,
वो दुनिया का बेशक सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, इट डजंट इवन मैटर, ठीक है। दैट्स व्हाट ब्रांड्स ऑल्सो थिंक। ब्रांड्स का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यही होता है कि गेट द मैक्सिमम आई बॉल्स, ठीक है। अब तुम सोच के देखो, अंकित भैया जो है, मसल ब्लेज स्पॉन्सर्ड हिम लाइक इन अ फकिंग सिंगल स्वैप, और उन्होंने उसको अच्छा खासा पैसा दिया हुआ, अच्छा, मैंने से अच्छा खासा, आई मीन अच्छा खासा, ठीक है। व्हाई? बिकॉज मसल ब्लेज इज वेरी गुड एट यू नो स्पॉटिंग आईज, कि जैसे कोई भी एक राइजिंग स्टार दिखता है, बूम, जस्ट स्पॉन्सर हिम, फकिंग मेक हिम इन योर टीम, ठीक है। एंड दोज पीपल हु आर गेटिंग स्पॉन्सर्ड फील गुड फॉर अ सेकंड कि वाओ, आई एम स्पॉन्सर्ड विद मसल ब्लेज। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट गाय गॉट आफ्टर गेटिंग स्पॉन्सर्ड इज नो वे नियर क्लोज टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मसल ब्लेज is getting. So the big G is Muscle Blaze. The big G is Muscle Blaze, not the guy who got sponsored. But yeah, definitely it's good for someone if you got sponsored, because क्या होता है ना, ब्रांड प्रमोशन जब आती है ना तुम्हारे पास, एक तो फर्स्टली तुम्हें वो पैसे देते हैं कि स्पॉन्सर करने के लिए कुछ, लाइक आई सेड इन द थर्ड पॉइंट, कि ब्रांड्स तुम्हें हायर करते हैं, ठीक है, लॉन्जेविटी, लाइक मसल ब्लेज, पॉपुलर वन, ओके। तुम्हें क्या करते हैं, वो तुम्हें महीने में अपना स्टैक भेजेंगे, तुम्हें पैसे देंगे अपनी रील्स पे प्रमोट करने के लिए मसल ब्लेज को, ठीक है। दैट्स द थिंग, दैट्स कॉल्ड अ मार्केटिंग मूव, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई मसल ब्लेज comes in the big G category of business and supplements owners, ठीक है। That's the thing. ब्रांड प्रमोशन अब जरूरी नहीं है कि हमेशा सप्लीमेंट्स की हो, कोई थर्ड ब्रांड भी आ सकता है तुम्हारे पास, ठीक है। एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, अगर तुम्हारे पास व्यूज ज्यादा आ रहे हैं ना, तो कभी भी चार्ज ज्यादा करने से कतराना मत, कभी भी मत कतराना, ठीक है। पीपल आर टू फ्रूगल विद द मनी, ठीक है। वो 2000 के लिए कुछ भी करेंगे, इवन इफ यू आर गेटिंग लाइक 1 लाख व्यूज, आई एटलीस्ट से कि तुम कम से कम 8 से 9 हजार रुपए चार्ज करो हर एक सिंगुलर ब्रांड के लिए, कि मेरा एक प्रोडक्ट प्रमोट कर दे, वो कर दे, ठीक है। नॉट अबाउट द स्पॉन्सरशिप्स वन, बिकॉज स्पॉन्सरशिप्स होती है मंथली बेसिस पे, यू गेट पेड मंथली, ओके, दैट्स द थिंग। अगर सिंगुलर ब्रांड आ रहा है, इफ यू गेटिंग व्यूज लाइक 100K, तो मेक श्योर तुम अच्छा चार्ज कर रहे हो, कभी भी अपने आप को डी वैल्यू मत करो। तुम्हें लगता है कि मैं कम पैसे मांगूंगा तो जल्दी देगा, नो, आज के 2000 कल के 10,000 हो सकते थे, यू नो व्हाई? क्योंकि तुमने अपनी ईगो तोड़ के, तुमने अपनी सोल तोड़ के, तुमने कम पैसे में वो चीज ले ली। शोज हाउ फ्रूगल यू आर, डोंट बी लाइक दिस, ठीक है। खुद का एक मनी फैक्टर बनाओ अपने व्यूज और अपनी ऑडियंस को देख के, एंड देन बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। कोई दे रहा है, ठीक है, कोई और आ जाएगा, कल कोई और आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी अगर तुमने एक ब्रांड ने रिजेक्ट कर दिया तो। ऑलवेज हैव अबंडेंस माइंडसेट, ऑलवेज, ठीक है। तो कभी भी ज्यादा चार्ज करने से कतराना मत, कभी भी। एंड इफ ब्रांड्स आर नॉट विलिंग टू पे यू हाई, दैट जस्ट शोज अ लॉट अबाउट योर ब्रांड वैल्यू, ठीक है। तुम काफी कुछ चीज सीख सकते हो बिजनेस से, अपने बारे में, पैसों के बारे में, दुनिया के बारे में, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। द फर्स्ट टिप आई विल से इज कि कभी भी अपने आप को अंडर प्राइस्ड मत रखो, वेदर इट्स कम्स टू सेलिंग समथिंग, कुछ भी तुम बेच रहे हो, कभी अंडर प्राइस मत करो। आई वॉज एबल टू सेल प्रोडक्ट्स वर्थ ऑफ $100, यू नो व्हाई? बिकॉज आई हैव अ फकिंग ब्रांड वैल्यू, पीपल लिसन टू थिंग्स आई से, ठीक है। मेरी बातों का, मेरे मैसेजेस का, ओके, मेरे इम्पैक्ट का सोशल मीडिया पे इज सम रेलेवेंस, सो आई कैन सेल एट दैट पॉइंट एंड पीपल हैव ट्रस्ट इन मी एंड सो दे फकिंग बाय इट, ठीक है। तुम कितने प्राइस पॉइंट पे चीजें बेच पाते हो सेज अ लॉट अबाउट योर ब्रांड वैल्यू, ठीक है। तुम्हें लगता है कि लोग एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदते, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। लोग खरीदते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि लैम्बोर्गिनी कल 50,000 रुपए की मिल रही है, इवन द पीपल हु आर वेरी फ्रूगल, वो इकट्ठी करना शुरू कर देंगे उस 50,000 रुपए को, उस चीज को इकट्ठा करने में लग जाएंगे, दोस्त से मांग रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो इफ यू थिंक थिंग्स आर टू एक्सपेंसिव, नो इट्स नॉट। पीपल जस्ट डू नॉट वांट योर प्रोडक्ट हार्ड इनफ, एंड टू मेक दैट हैपन यू हैव टू फर्स्ट टेक योर ब्रांड वैल्यू अप। और तुम्हारी ब्रांड वैल्यू अप कैसे होगी? टू हैव हाई स्टैंडर्ड्स इवन इन द बिगिनिंग। पीपल विल कॉल यू डिल्यूजनल, लेट देम कॉल देम, ठीक है। तुम अपनी धीरे धीरे अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, until it comes to a point where that price point makes sense. So do not underprice yourself, ठीक है। मैं कहूंगा ओवर प्राइस भी मत करो, बट डू नॉट इवन अंडर प्राइस योरसेल्फ। हमेशा बीट से थोड़ा सा आगे रहो, ओके। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट मींस। लेट्स से एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ओके। यहां पे है ओवर प्राइस, यहां पे है ओवर प्राइस, यहां पे है अंडर प्राइस, ये है बीच का पॉइंट। मैं तुम्हें हमेशा एडवाइस करूंगा कि अपना प्रोडक्ट हमेशा कहीं यहां कहीं प्राइस करो। लोगों क्या करते हैं, लोग कन्फ्लेट करते हैं चीप चीज को कम प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं कुछ 200 रुपए का बेच रहा हूं, ठीक है। लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत सस्ता है, तो ऑब्वियसली कुछ गलत भी होगा, तो कुछ नुकसान नहीं है। दैट्स अ बैड मेंटालिटी, ठीक है। अब आईफोन महंगा है, ठीक है, लोग सोचते हैं आईफोन महंगा है, महंगा मतलब क्वालिटी, क्वालिटी, डैम क्वालिटी, आई शुड गो फॉर इट, ठीक है। तो पीपल कन्फ्लेट क्वालिटी विद मनी, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग। तो अंडर प्राइसिंग पहली बात तुम्हें कभी भी अमीर नहीं बनाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओवर प्राइसिंग इज समथिंग डिल्यूशनल, ठीक है। सो गो थोड़ा सा आगे फ्रॉम द मिडल एंड देन प्राइस योर प्रोडक्ट एंड देन ओन इट, ओन दैट प्राइस पॉइंट, ओन इट, बिलीव इट। उसको बैकअप करो अपने ओपिनियन से, अपने ब्रांड वैल्यू से। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके।
द फोर्थ वे यू कैन अर्न इज बाय क्लोथिंग, ठीक है। क्लोथिंग्स भी होते हैं जैसे कि फार्क फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पॉपुलर ब्रांड, ठीक है। तो ये क्लोथ सेल करता है, तुम्हें लाइक बोलेगा कि भाई ये कपड़े पहन के तुम अपने जिम में वर्कआउट्स करो, रील्स डालो, ऑल ऑफ दैट थिंग। सी हाउ ब्यूटीफुल दीज ब्रांड्स ऑपरेट, ठीक है। हम लोग बिजी रहते हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने में, ये वो, एंड दीज फकिंग बिग कंपनीज, ठीक है, बिग कंपनीज, ये सब इतना मार्जिन लेते हैं ना, इतना प्रॉफिट कमाती है कि यू कांट इवन जस्ट इमेजिन। इनके लिए एक क्रिएटर को 60,000 देना इज लिटरली क्लोज टू 10 रुपए देना। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज फॉर देम मनी इज like not that much big of a issue. For them, marketing, branding, okay, all of these things are big of a issue because तुम्हारी marketing और branding on point है. Money is something you will inevitably earn. So the last thing is supplement brands. ये तुम खुद बना सकते हो, okay? It's not that hard, but वही बात है कि कुछ मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा ये चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए। सप्लीमेंट ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तुमने देखा होगा सिंगा ने भी अपनी एक ब्रांड बनाई है अभी, ठीक है। तुम जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, यू कैन क्रिएट थिंग्स बाय योर ओन। That's the beauty of it. But initially इस चीज़ को शुरू करना is like I would say a dumb move. And the third point is something मैं तुम्हें अपनी फर्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. The third point was pure numbers game. इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी, तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग, नॉट इवन फिटनेस, इन एवरी नीश यू कैन थिंक ऑफ, तुम अटेंशन जब तक नहीं लाओगे यू कैन नॉट गेट रिच. द वर्ल्ड वी लिव इन इट बेस्ड ऑन अटेंशन इकोनॉमी, ठीक है. लोगों को तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम एग्जिस्ट करते हो, और वो चीज करने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, पहली चीज. दूसरी चीज तुम्हें यूनिक होना पड़ेगा. तीसरी चीज तुम्हें डिफरेंट होना पड़ेगा. ओके, दीज आर द थिंग्स. तो ये प्योर नंबर्स गेम है. तुम नंबर्स लाओगे तो तुम ब्रांड्स को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है. तुम ब्रांड्स को अट्रैक्ट करोगे विच मीन्स पैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली तुम ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर रहे हो विच मीन्स कि तुम ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि ब्रांड्स जो होती है वो ऑडियंस से ही अट्रैक्ट होती है. अब तुम ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, इट ऑल्सो मीन्स कि तुम कोचिंग भी सेल कर सकते हो. आई मीन इन शॉर्ट में तुम्हें बताऊं तो इट्स ऑल नंबर्स गेम. सब कुछ नंबर्स का गेम है यहाँ पे, ठीक है. The more numbers you have, the more people watch you, your YouTube videos, your IG reels, ठीक है, all of these things. The more profit you're gonna get. और अब बात करते हैं कि तुम व्यूज कैसे ला सकते हो. तुम देख ही रहे होगे कि आज के टाइम पे लाइक की रील्स चलती है कि कि वही टिपिकल रील्स जो कोट्स डाल देते हैं कि भाई मुझे छोड़ के चली गई, द कॉर्नी साइड ऑफ द जिम. कि भाई छोड़ के चली गई, फॉन्ग का गाना बजाओ, फ्लेक्स योर मसल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वन वे ऑफ गेटिंग व्यूज इज दिस. द सेकंड वे इज टू एक्चुअली प्रोवाइड वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, I like a guy, your fitness stories on IG, look him up if you want to. वो information देता है अपनी वीडियोस में. वो ऐसे बस रील्स नहीं बनाता कि भाई this woman left you, women are like this, okay, हरियाणा का छोरा, all of these things. I mean, मैं भी हरियाणा से हूँ, to be very honest. ये चीज़ मेरे को कुछ लगती नहीं है. लाइक तुम क्या वैल्यू क्या दे रहे हो उस चीज़ से. मतलब अपने ही चर्चे करते हैं रील्स में, मैं तो ये हूँ, ये हूँ. I don't like people who are just self-obsessed, to be very honest, ठीक है. अगर तुम्हें genuinely इस नीश में घुसना ही है तो कम से कम एक इंटेलेक्चुअल साइड होके घुसो, लोग कुछ सिखाने के लिए घुसो, ठीक है, अपने आप को बस पढ़ाने के लिए नहीं. लाइक बहुत सारे क्रिएटर्स देखे मैंने जो कि सिर्फ रील्स डालते रहते हैं ऐसी नॉर्मल सी कोट्स के ऊपर, ठीक है. उस पर 3-4 लाख व्यूज आ जाते हैं, ठीक है. फिर लोग कमेंट करते हैं बिकॉज इट्स इजी टू ट्रिगर अ गाय विद इमोशंस, ठीक है. एंड हाँ, वो भी तरीका है व्यूज लाने का, एंड इट ऑल्सो इज गोना मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी जो कि तुम ज्ञान दे के बनाओगे. बट स्टिल द थिंग इज कि मैं प्रेफर करता हूँ मीनिंगफुल चीजों को, इवन इफ इट टेक्स टाइम, बिकॉज उससे मेरी सोल हैप्पी रहती है. दैट्स द थिंग. तुम्हारी भी रहेगी इफ यू वांट ट्राई इट आउट. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो.